ये सब कर लिए हुए हैं, मतलब सब कर लिए हैं। तो उसके बाद ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਅਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਖੇਡੀ, ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡੇ ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਡੇ ਤਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਲਿਆ, ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਗੇਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਜੋਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੀਰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? हमें अच्छा लगता था वो बेल्ट, तो हम उसको करना चाहते थे, तो हमने उसको किया। मन लगा, किया और अच्छा किया। जहाँ नहीं पता चलता था वहाँ पर टीचर बताते थे। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? बहुत ही सर जी हमको हमेशा प्रैक्टिस करवाते थे, एक एक घंटे में करवाते थे, और हमें बहुत अच्छा भी लगता था। और अब जब हम ये सब कर लिए हुए हैं, मतलब सब कर लिए हैं, तो उसके बाद भी हमें काम कुछ नहीं कह सकते, उनका कुछ पता भी नहीं। ये सब जो काम देते भी नहीं है, बेकार है सब के सब। हमने इतना सब किया क्योंकि ये हम में टैलेंट है, प्रतिभा है, और सब देखकर भी ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा, बस इतना ही। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਜਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ब्लैक बेल्ट से इससे ज़्यादा तो ये सब का कोई मेरी नज़र में कोई मोल नहीं है। बस मेरे जो प्रतिभा है उसी के बदौलत ही मैंने ये जीते हैं, जो भगवान ने दिए मुझको। भगवान किसी को किसी ना कोई प्रतिभा देता ही है, ये सिर्फ भगवान की ही देन है। बस उनकी देन की वजह से ही मुझको ये सब मिले, नहीं तो हुनर के बिना
इनका कोई मोल नहीं, बेकार है, मिट्टी है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਜੋਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ 100%, ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇ ਨੀਰਜ ਹੁਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨੀਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ? खुशी भी होती है और दुख भी होता है। ये हमको सिर्फ ये मेडल ही दिया है, पैसा कमाने का कुछ जरिया नहीं, बस दे दिया है हमको ये सब मेडल। मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं है। माता पिता हमको यही बोलते हैं कि तुमने अपनी मेहनत से इसको जीता है तो तुम्हें तो इसकी कदर करनी चाहिए। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल, मैं कदर करता हूँ, और जो अच्छा करता है उसकी कदर भी करते हैं और ज़रूरी भी है। लेकिन जब यही हमको पैसा नहीं कमा के दे पा रहा है तो फिर हम इस सब चीज़ों का क्या रखें, क्यों रखें? हम में हुनर है, हम हुनर से कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, और ये सब हमारे हाथ में है। लेकिन ये तो इसको बेच भी सकते हैं, इससे भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इससे हमारा जो प्रतिभा है उसका अपमान नहीं होगा, बस। क्योंकि अपने प्रतिभा से इसको बनाया है, अब अपने प्रतिभा से इसको बेच सकते हैं और कुछ नहीं। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है सरकार को, फोटो खिंचवाने के लिए, बस, और कुछ नहीं। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ? हाँ जी, ये सच है। सच तो ये है कि मेरा तो मन पहले से ही था। जब मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि तुम स्कूल पर, जब मैं स्कूल पर पढ़ने के लिए जाती थी तो स्कूल में जो भी बात होती थी वो मैं आकर अपने पेरेंट्स को बताती थी कि मम्मी हमारे स्कूल में कोई ऐसी गेम होगा तो मैं क्या करूँगी बताओ। तो मेरी माँ ने कहा कि जो तेरा मन करे तू वो खेल। तो मैंने क्या किया, मेरे मन जैसे आया तो मैंने सोचा एक दो दिन में मैं वेट करती हूँ कि मुझे क्या खेलना और क्या नहीं। और जैसे मेरे दिमाग में आया कि बैडमिंटन खेल लेती हूँ तो मेरी माँ ने कहा चल ठीक है बैडमिंटन ही खेले। तो फिर उसके बाद भी मैंने क्या किया, मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। तो मैंने सर को बोला, सारे जितने भी सर थे उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मुझे वहाँ जाके गुस्सा आ रहा था तो मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि बाकी बच्चों का नाम लिख दिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? मैं भी तो ऐसी बच्ची हूँ, ना तो मैं सुन सकती थी ना मैं बोल सकती थी। अरे कुछ ऐसे बच्चे हैं वो भी तो चाहे ना खेलने के लिए, तो प्लीज़ आप उनका भी नाम लिखो। तो अगर नाम लिखोगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा ज़िंदगी में, अपने माँ बाप की रोशन करेगा, सब कुछ करेगा, सपना पूरा करेगा। तो बच्चे को दुखी ना बनाओ। बच्चा चाहता है खेलने के लिए तो प्लीज़ आप उनको खेलने के लिए डालो, वो इसको अच्छा लगे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि बच्चा ऐसा भी कर सकता है। तो उसी के हिसाब से मैंने सर ने मेरे को वहाँ बुलाया। एक सर जी थे, उन्होंने मेरी मदद हमेशा की। उनका नाम दत्ता सर है, उन्होंने हर काम में मेरा साथ दिया। और एक प्रिंसिपल सर, एक वाइस मैम है, उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, तो उनको बुलाओ। तो जैसे उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि क्या बात है बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? तो मैंने बोला सर ऐसी बात है कि मैं तो ना बोल सकती थी ना मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मुझे आपसे इशारे में बात करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग इशारा नहीं समझ पाओगे। लेकिन एक टीचर है वो मेरी जरूर इशारा समझेगी, लेकिन वो तो आपको बताएगी भी नहीं, मुझे आपको लिख कर ही देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लिख के दिया ना, तो किसी बच्चे ने पेड़ फाड़ दिया तो मैं बहुत दुखी हुई। तो उस वक्त किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया। तो फिर उसके बाद एक और टीचर आए ना, उन्होंने मेरी साथ देने की कोशिश की। टीचर ने बताया कि तुम इशारे में बात करोगे, मैं तुम्हारी इशारा समझती हूँ, बोलो क्या बात है। तो हमने बोला कि हम ना ये खेलना चाहते ये, ताकि मैं मेडल जीत सकूँ, तो आप मुझे गेम में डालोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैडम ने कहा कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो मुझे प्रिंसिपल सर के पास लेके गए, तो सर को बताया कि ये बच्ची है ना, ये इशारे में बात करती है, तो प्लीज़ आप इनकी इशारे में बात समझो। तो सर ने कहा कि मुझे तो ऐसा बच्चा मालूम नहीं था कि ये भी इसी स्कूल में इशारे में बात करता है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई मुझे बताओ। तो मैडम ने सारी बात बताई। उसने बोला मैम इस बच्ची ने ना पेज में चिट्ठी लिखी थी, किसी ने जानबूझ के इसकी कागज़ फाड़ दिया
और ये बच्ची रोने लगी, तो मैंने आकर देखा कि इसको क्या हुआ, तो ये चाहती है कि मेरा नाम लिख दो। तो जब किसी को एक एक बुलाया तो उसने बोला कि आपने मतलब इस बच्ची का पेज क्यों फाड़ा, जब ये बच्चा मतलब चाहता है कि मैं खेलूं और आगे बढ़ूं, तो तुमने ऐसा काम क्यों किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इसको सॉरी बोलो। तब उन बच्चों ने उनके आगे सॉरी बोला कि हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम बोलते हो या सुनते हो, मुझे नहीं मालूम था, हमें माफ़ कर दो। उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी, पैर पकड़ के माफ़ी मांगी, टीचर ने भी माफ़ी मांगी। तो बोलते कि हमें ना स्कूल से मत निकालो। हमने कहा चलो ठीक है। फिर मैडम ने बोला ये बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा तो बोल नहीं सकता ना सुन सकता है, लेकिन जब ये बोलेगा ना जिंदगी भर के आपके सबके सामने खड़ी होकर आपको क्या जवाब देगी, फिर आप जिंदगी भर याद रख पाओगे। फिर उसके बाद मेरे एक सर जी आए, उन्होंने मेरे को बोला आप आओ मेरे पास। फिर मैं गई। जब मेरी क्लास की बारी आई थी ना, तो सर जी को मैंने बोला कि सर जी ने एक स्टूडेंट को बोला था कि इस बच्चे का भी नाम लिखो, तो मेरा नाम लिखा गया बैडमिंटन का, और मैंने बैडमिंटन का नाम लिखवा दी और नाम लिखवाने की क्लास भी करवा दी। तो जब मैं चौथे क्लास में पढ़ती थी तब की बात है। तो फिर उसके बाद भी मैं नहीं हाँ चौथे क्लास, फिर उसके बाद भी मैं उधर चल गई थी क्लास में। तो मैम की बारी आई थी, मैम मुझे साइंस पढ़ाने लगी थी। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे ना कुछ जरूरी काम है, मुझे मैम ने बुलाया है, सर जी ने बुलाया, मुझे वहाँ जाना होगा। मैंने उसको इशारे में बात की थी, वो मैम मेरी इशारा नहीं समझ पा रही, तो मैंने बोला इसको तो कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे जाना होगा। मैं चल गई चुपचाप। तो फिर वो मुझे जाने भी नहीं दे रही थी। तो एक लड़की ने बताया, बोले मैम इसने ना बैडमिंटन का नाम लिखवाया है, इसको जाने दो, नहीं तो सर जी आपको डांटे के अच्छा नहीं लगेगा, जाने दो इस बच्चे को। तो बोलते ठीक है, बोलते हाँ ज्योति तुम जा सकते हो, पर मेरा डांट मत मकवाना, जाओ जाओ जाओ। फिर उसके बाद ना मैंने बोला थैंक यू मैम। फिर मैं चल गई थी वहाँ पर। फिर मेरे वहाँ पे एक लंबे वाले सर जी थे, उसका नाम मैं नहीं जानती, पर वो बहुत अच्छे थे। और एक दूसरे सर हैं जितेंद्र सर, वो भी बहुत अच्छे थे। और एक मैडम थी, वो भी बहुत अच्छी थी। जब मैंने पहली बार नाम लिखवाया था ना, तो मेरा मन इतना खुश हो रहा था, मैंने सोचा कि मैं पहली बार मैंने नाम लिखवाया है, पहली बार मैं खेल रही हूँ, मैंने कभी आज तक किसी स्कूल में नहीं खेला, चलो मौका है तो खेल लेते हैं, जिंदगी भर आगे बढ़ लेते, क्या जाएगा, बस ये वाली बात थी। और जैसे मैंने देखा कि मेरे साथ कौन कौन खेल रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। वे सर जी ने मुझसे सवाल पूछा, सर बोलते ज्योति आपका नाम है, मैंने कहा हाँ जी सर मेरा नाम है ज्योति, इशारे में बोला था मेरा नाम है। तो उसके बाद बोलते कि आपने कभी ये खेला है बैडमिंटन, मैंने बोला मतलब नहीं खेला, मैंने कभी नहीं खेला बैडमिंटन। तो उसके बाद बोलते कि आप पहली बार खेल रहे हो, मैंने कहा पहली बार खेलूंगी। बोलते अच्छा। तो फिर मैंने सर को चिट्ठी लिख के दी थी कागज, मैंने बोला सर ये पढ़ो। तो सर जी ने पढ़ा, सर बोल रहे थे कि क्या बात है, एक बच्चा ने स्कूल में कभी इसी स्कूल में बैडमिंटन नहीं खेला, यानी कि इसका मतलब ये बच्चा पहली बार खेलना चाहता है स्कूल में बैडमिंटन। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? उन्होंने हमको कभी प्रैक्टिस नहीं करनी दी थी। उस वक्त मैं तो बस अकेली बैठती थी, मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं होती थी। मेरा दोस्त मेरे माँ बाप थे, मेरे माँ बाप मेरे लिए सच्चे थे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो मेरे को शिक्षा दी थी मैंने वही किया था। तो मेरे माँ बाप ने कहा था कि जो झूठे होते हैं उनके साथ दोस्ती तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी, जो अच्छे होते हैं उनसे दोस्ती रखो, जो बुरे लोग हैं उनके साथ बिल्कुल नहीं। मैं क्या करती थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं स्कूल में अकेले अकेले करके घूमती थी और अकेली खेलती थी, अकेली पढ़ती थी, किसी की बात नहीं सुनती, सिर्फ टीचर की सुनती थी, क्योंकि मेरी आदत थी सिर्फ टीचर की सुनना। स्टूडेंट आकर बातों बातों में एसिड डालेंगे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, ना टीचर को अच्छा लगेगा। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। तो फिर उसके बाद बच्चे में सारे के सारे स्टूडेंट बोलते रहते थे, कह रहे थे कि सर ये बच्ची तो हैंडीकैप है, ये बच्चा खेल नहीं सकता, ये तो हार जाएगा। तो मैंने बोला, मेरे को तो खुशी हो रही थी, मैंने बोला इनको तो पता नहीं है कि ये भी हमारे जैसे बच्चे हैं, तो जब इनको पता चलेगा ना कि बच्चा कैसे जीतता हो कैसे नहीं, तब इसको पता चलेगा। तो किसी को नहीं पता था, किसी ने मेरे को खेलने के लिए बोला भी नहीं था, ना हमारी उधर प्रैक्टिस होती थी, ना कुछ, बच्चे अपनी मस्ती मार खेलते रहते थे, पर उनकी प्रैक्टिस होती थी, हमको नहीं खिलाते थे, ना बास्केटबॉल, ना फुटबॉल, ना हॉकी, ना बैडमिंटन। मैंने खुद से फैसला किया था कि मैंने खेलना है। मैं स्टेट पे भी चल जाती थी, सब स्टूडेंट हैरान हो जाते थे कि ये बच्चा में इतनी हिम्मत कैसी, ये स्टेट पर कैसे चल गई। आंसर भी वहीं देती थी, सब कुछ मैं करती थी, बस सबके सब डरे रहते थे, वो टीचर भी डरी रहती थी मुझसे, बोलते कि इस बच्चे में तो बहुत हिम्मत है, ये बच्चा बिल्कुल पीछे नहीं हटता, ये लगता है कि इसमें हिम्मत तो है सच में, ये किसी से भी डरती नहीं है, ना प्रिंसिपल से, ना वाइस प्रिंसिपल मैम से, ना टीचर से, ना हमसे। ये क्या बच्चा है, इसको खा पी के कितना बड़ा बच्चा पैदा कर दिया, क्या बात है, अच्छी बात है, चल करी चलो ताली मारो। फिर उन्होंने ताली मारी,
तो फिर जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी मैं चुपचाप सर के पास चल जाती थी। मैं किसी स्टूडेंट को नहीं बताती। जब कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता था ना कि आप किधर गए थे, तो मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी। मैं चुपचाप स्ट्रीट पर बैठ जाती थी ऐसा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ? 골ਡ ਮੈਡਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? मेडल तो काफ़ी मैंने बहुत लिए हैं, जीते हुए हैं। और ब्लैक कुछ बेल्ट के ब्लैक बेल्ट के काफ़ी ज़्यादा होंगे, वो यही है। एक है, एक 2 है, एक 3 है, और एक 4 है, और एक 5 है, और एक 6 है, 7 8 है, एक 9, एक 10 11, और एक 2 टॉफी। ब्लैक बेल्ट के ब्लैक बेल्ट के मैंने कपूरथला में भी मैंने गोल्ड मेडल जीती है, और उसकी सर्टिफिकेट उन्होंने दी हुई है मेरे को। सर्टिफिकेट मेरे पास अभी पड़े हैं। और मेडल मैंने जीते हैं यहाँ पर रेन मुकान कराटे एसोसिएशन में, वहाँ पे जीती है मैंने। वहाँ पे मैंने मेडल और सिल्वर लिए हैं, और सर्टिफिकेट भी, ट्रॉफी भी वही जीते हैं मैंने कराटे में। फाइटिंग में भी मेरे को फाइटिंग के हिसाब से ये मिले मेरे को, ये मेरे को पढ़ाई के हिसाब से मिला है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੇਮ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ। ਗੇਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, मैंने गेम छोड़ा नहीं है। हाँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं गेम छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरा मन था बहुत आगे बढ़ने का, मैं गेम करना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, मेरे सर जी छोड़कर चले गए हैं हम सबको, उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो उसके जगह वो सिखा रहा है विशाल। तो मैंने सोचा कि मैं इनके साथ ऐसा गेम नहीं कर सकती, क्योंकि क्या पता कि ये यहाँ के और ज़्यादा खुंडे ना आ जाए, ना लड़के आ जाए, तो अच्छा नहीं लगे। क्योंकि लड़की की अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे आ सकते हैं, लेकिन बड़े वाले बाद में आ सकते हैं। सिर्फ उसमें लड़कियां होना चाहिए। अगर लड़का अकेला होता, वो सिखा रहा है, तो लड़कियां इकट्ठा लड़की होना चाहिए, लड़के नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। क्योंकि मेरा मन तो दुखी हो जाता है, मैं अपने मन को दुखी नहीं करती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। ਮੇਰੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਕਿੰਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ? ये तो पता नहीं, सब मिक्स है, सब एक जैसे ही है, कुछ पता नहीं चला। और ये भी नहीं पता कि मैंने जीता कितना है। अच्छा, बस मैं जीतता गया वक्त के साथ साथ। इस सब का मेरी नज़र में कोई मोल था नहीं। बस मम्मी ने पापा ने जरूरी समझा इसको खेलने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने इसके लिए कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की है। ये बस उसी की जताने के लिए था, ये शो बस दिखाने के लिए, रखने के लिए। ऐसे पैसा कुछ नहीं था, बस इसको बेचकर पैसा कमाने लग गया। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ? बहुत बहुत सारी। जब से हमने 12वीं पूरी की है, तब से ही हमने जॉब की अप्लाई दे रखी थी हर जगह। एम्प्लॉय वो भी थे, है ना, आपको शायद नाम पता उनका उनके पास भी भेजा था। माता पिता को और हमको हर जगह घुमाई जा रहे थे, और ऐसे घुमा रहे थे जैसे ये काबिल तो हैं, लेकिन हम इनको घुमाएंगे, बस घुमाते रहो। ऐसा था उनका, ऐसा। और हमको जॉब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी वहाँ पे जाके। मम्मी पापा हर जगह चले गए, और हम भी वहाँ पे गए। और इसकी वजह से तो गुस्सा आता था कि ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। हमसे कोई गलती होगी कि जो हमको ऐसे जॉब नहीं दे रहे। हम में तो इतनी हुनर है, इतनी प्रतिभा है, आप अपने मेहनत से ही आगे पढ़ना चाहते हैं, सिफारिश की तो जरूरत ही नहीं है। सब सिफारिश ही मांगते हैं, बोलते हैं कि आप सिफारिश लाओ तब हम आपको भेजेंगे। पैसे भी मांगते थे, रिश्वत? रिश्वत ये मामला शायद मेरे सामने आया नहीं है। सिफारिश मतलब वो सिफारिश के दम पर ही मुझको देना चाहते थे, मेरी मेहनत की वजह से नहीं, मेरे हुनर की वजह से नहीं। और मुझको ये सब अच्छा नहीं लगा। मेरे मम्मी पापा हर बार ये बोलते थे, तो मैं बात का विरोध करता था कि मुझको कोई ज़रूरत नहीं है सिफारिश की। अगर मैं सिफारिश का ही ये जो कह रहे हो आप, अगर मैं इसको स्वीकार करूँगा तो ये मेरे जो प्रतिभा है उसका अपमान होगा, उसके कला का अपमान होगा, मेरे कला का जो मेरा गला है उसका अपमान होगा, और ये मुझको बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं अपने दम पर ही सब कुछ करना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ।
लेकिन जब करने की बारी आती है और जब करना होता है तो पता चल जाता है। जब गाना गाना होता है ना, मैं गाने की बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छा तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं गाना अच्छा गा सकता हूँ। और जब मैंने गाना गाना शुरू किया तो आवाज़ अच्छी लगी, मैंने भगवान का नाम लिया तो शुरू हो गया। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ? आज सरकारी ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? वहाँ पे तो बहुत सारी सुविधा है और वहाँ पे अगर हम टिके रहेंगे तो आने वाले जो समय है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकारी में और प्राइवेट में बहुत फर्क है, एक जैसा नहीं लगाया है, एक जैसा सिस्टम नहीं है। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨੀ? वहाँ पे भी करनी है, वहाँ में भी करने के लिए बहुत अप्लाई मैं सोच रहा था, मैं जाता रहता था। मेरे मम्मी पापा हर बार मना करते थे कि तू प्राइवेट जॉब मत कर, मत जाया कर। मुझको दोनों काम बहुत अच्छे लगते थे, सरकारी और प्राइवेट। तो मम्मी, मैं क्या करता था कि मम्मी पापा को बिना पता ही चला जाता था जॉब के लिए। एक मैंने बेकरी की थी, तो वहाँ पे वो शायद प्राइवेट ही है, तो वहाँ पे मैंने किया तो सबको पसंद नहीं आया था और मैंने भी बहुत बहुत किया। जब इनको मैंने बताया तो इन्होंने बोला कि तूने ये क्या क्या कर रहा है, तू बेकरी की दुकान भी क्यों किया, तो वहाँ पे क्यों चला गया। मैंने बोला जॉब करना। अरे हमने तो अप्लाई दे रखी है वहाँ पे सरकारी, तो प्राइवेट कर रहा है। मैंने बोला प्राइवेट और सरकारी में क्या इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो, कि मेहनत ही सारे- करनी है, कितने भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मुझको अच्छा लगा और मैं करने चला गया, लेकिन वहाँ पे मुझे ज़्यादा मन नहीं लगा क्योंकि खाना बनाना मुझको ज़्यादा पसंद नहीं है, अच्छा इसलिए मैं वहाँ से हट गया। उसकी वजह से घर में लड़ाई भी हो जाती थी बार बार, कि तू बार बार क्यों जाता था, पापा बहुत लड़ते थे। इसलिए मैं वहाँ से मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैं लगा रहा। पहले पहले ऐसे हुआ था, ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ? मन नहीं हुआ, क्या बोलते हैं उसको, हम कुछ और करना चाहते थे, बड़ा काम करना चाहते थे, नया काम करना चाहते थे। यह काम तो मैंने बहुत सीखा है, लेकिन मुझको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं हुआ और करने में, इसलिए मैंने इतना ही किया। इतना ही मेरे लिए बहुत पर्याप्त था, काफ़ी था, काफ़ी था। अब तो सरकारी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ? दुख तो है, दुख तो मुझे भी है, मेरे परिवार को भी है। लेकिन ना इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी अपने गेमों के बारे में। एक चीज़ रह गई थी जो मुझे कहना था। जो मेरे सर जी थे ना, लंबे वाले सर, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कहा था कि जब बच्चे ने कहा था कि सर ज्योति तो शायद इसका नाम होगा, तो सर जी ने मुझे कहा कि आपका नाम है ज्योति। मैंने कहा हाँ जी सर मेरा नाम है ज्योति। बोलते आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने उनको क्लास बताया, तो जैसे उन्होंने कहा कि ये तो अभी छोटी बच्ची है, ये कैसे खेल पाएगी। तो मैंने कहा सर आप इसका मजाक मत बनाओ, ये बच्ची खेलना चाहती है तो प्लीज़ आपको खिलाओ, नहीं खिला सकते तो बैडमिंटन का खेल किस लिए बनाया, ये बच्ची हैंडीकैप है, इसको खिलाना चाहिए। ये हम सिर्फ मैडम ने कहा था। मैडम ने सर जी को बोला कि आप इस बच्चे का मजाक नहीं बनाना, आपको इसको खिलाना है, देखना ये जीतेगी, जरूर जीतेगी, मुझे इसमें पूरा गर्व है, आप इसको खिलाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसके बाद जब 3-4 लड़कियां आई, 10-15 लड़कियां थे, मैं अकेली थी, अकेले करके मेरे सभी लड़कियों के साथ वो हो रहा था बैडमिंटन के कंपटीशन। तो दूसरे सर आए, उन्होंने बोला हाँ ये लड़की तो वही है, ये ज्योति नाम है, बहुत समझदार लड़की है, होशियार है, इसको खिलाओ अच्छा रहेगा। तो फिर इसके बाद मैडम आए, मैडम बोलते चलो इधर आओ। तो भी इन्होंने ना कागज़ की जो पर्ची होती है ना, उन्होंने नंबर डाल डाल के ऐसे छुआ, बोलते कि आपने इनको और इनको चुनना है, इनमें से आपने चुनना है, ये वो छुएगा। तो उन्होंने जैसे खेलने वाला होता है ना ऐसे डालते हैं, तो इनमें से कागज़ पकड़ो, उसमें नंबर खोलो, तो वो देखेगा कि 1 के साथ तो उसी लड़की के साथ है। और जैसे मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, सब लोग देखे मुझको हैरान हो गए, बोल रहे थे ये कमाल की लड़की है, इसको तो हमने कभी बैडमिंटन खेलते हुए कभी नहीं देखा है, आज पहली बार इस लड़की को देखा है खेलते हुए, क्या कमाल की लड़की है, तो जीत गई। सब मैंने मैम से पूछा, मैडम सब लोग मैम से पूछ रहे थे कि मैम बैडमिंटन में कौन जीता। मैम बोलते ये लड़की जीती है, इसका नाम ज्योति है, ज्योति जीती है, सिर्फ इसने सिर्फ बैडमिंटन में गोल्ड मेडल ही जीता है। और बोलते इस बच्चे ने बहुत अच्छा खेला है, हम इनके लिए बहुत खुश हैं। तो सर जी ने जब
माफ़ी मांगा, मुझे सर बोलते कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपका मजाक नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, सच तो ये कि मैडम ने सही कहा था कि ये बच्चे में मुझे गर्व है, तो बच्चा आगे बढ़ सकता है ज़िंदगी में, पर ये बड़े होकर सब कुछ कर सकती है, अपने माँ बाप की रोशन भी कर सकती है, जहाँ इसको मिले वहाँ पे ये जा सकती है। नाम रोशन ਅੱਛਾ नाम सही रोशन पकड़े। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? मैंने पहले तो मैं आशा स्कूल में पढ़ती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं शारे नाल गल करती थी। उस वक्त मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं, क्योंकि मेरे एक तो मेरे को बोलने की जबान में भाषा में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जैसे आज मैंने बोला तो मेरे से सब लोग मेरी भाषा समझ जाते हैं, लेकिन मैं कुछ भाषा नहीं समझ पाती अपनी तरफ से कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ, क्या कहने जा रही हूँ। पहली बात तो ये है कि बचपन से मैं बोलती और सुनती बिल्कुल नहीं थी। 18 साल की उम्र में मैंने बोलना स्टार्ट किया, वो भी माता चिंतपूर्णी तरवार के वहाँ पे। तब जब हम मेरे माता पिता मुझे माता चिंतपूर्णी की तरवार में लेके गए थे ना, तो उसी के हिसाब से मैंने 18 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मेरा बोलना स्टार्ट हुआ, वो मेरी कान तो नहीं खुला, लेकिन कान में हेरियन की लगी, मशीन लगी है बस दोनों कानों में। ਨੀਰਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे तो हमने बोला, उसके बाद तो हमने बहुत ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? कुछ भी याद नहीं। ਅੱਛਾ। और ये भी याद नहीं है कि मैंने कोई शैतानी की हुई थी बचपन में, मैं कहीं गया और कहीं भागा, कुछ भी याद नहीं। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? पहले तो हम जब बचपन से बहुत छोटे थे, तो हम बस मेरे को बचपन की सब यादें सारी जगह याद है, लेकिन मेरे भाइयों को याद नहीं है, क्योंकि मैं आंखों की नज़र से हर जगह देखती रहती थी, क्योंकि मेरे को सब याद है। जैसे मैं जो भी बातें याद करती थी ना, अपने माँ बाप से शेयर करती थी, तो मेरे माँ बाप मेरे को बोलते थे कि तुझे कैसे पता, तुम्हें ये चीज़ याद कैसे आई, हमने तुझे बताया नहीं। हमने बोला कि जहाँ जहाँ मुझे लेकर गए थे ना, मैंने अपनी आंखों से सारी नज़र देखा था। मैं भी समझदार हूँ। हम माता के दर्शन मुझको क्यों नहीं याद है? ये तो प्रॉब्लम है। तो मैं अपने भैया को इसी भाई से बात करती थी, अपने छोटे भाई से भी, तो उनको शेयर करती रहती थी कि ऐसे करना, बस ये लोग करते रहते जो, क्योंकि मेरे को अपने भाइयों से बहुत प्यार है। ये मेरे दोनों भाई मेरे पे गैर नहीं रहते कभी भी, क्योंकि मैं उसकी सिस्टर हूँ, मेरा हक बनता अपने दोनों भाइयों में प्यार लेने, बस। तो ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ये ध्यान रखते हैं बहुत ज्यादा, ध्यान तो बहुत रखते हैं, क्योंकि हम तीनों भाइयों में प्यार बहुत है, हम अलग नहीं रहते बिल्कुल भी। शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਤੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਮਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਤੀ ਸੀ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ KGMC ਲਖਨਊ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MH ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 13 ਤਰੀਕ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2009 ਨੂੰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਸੁਖਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਚਿਤਨਾਪੁਰਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਵਰ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆ, ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਅਰ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਮ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 100% ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ ਹੀ, ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 55% ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਵਰਆਲ ਝਾਤ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੇਡ ਲਿਆ, ਮੈਡਲ ਲੈ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਏ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੱਤ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੋਤੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुझे बस नौकरी में जॉब करना है। मैंने जो सोचा कि मैंने तो गेम तो खेल लिया, स्कूल पढ़ाई कर लिया, आगे भी तो मैं कुछ करूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने गेम तो किया है, लेकिन मैंने मेडल भी जीता, ट्रॉफी भी जीता, सब कुछ किया मैंने। तो मेरे को नौकरी के बारे में सोचना है, या नौकरी में मुझे ऐसा गेम वाला भी मिल जाए तब भी मेरे लिए अच्छा रहेगा। जहाँ भी मुझे डाला जाएगा मैं वहाँ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। क्या गेम करूँ चाहे एमएच करूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं सिर्फ एमएच में मिलिट्री और सिविल में करना चाहती हूँ। एमएच सिर्फ मेरा तो मन एमएच ही कर रहा है, क्योंकि जिस दिन मेरी मम्मी पापा एक बार वहाँ गए हुए थे ना, तो उन्होंने बात की थी वो जहाँ से इंटरव्यू लेने के लिए बात की थी। तो उन्होंने ना कहा था कि हम ऐसे बच्चों को नौकरी दे देंगे। तो बोलते हम इस बच्चे से बात जरूर करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। उन्होंने मेरे माँ बाप से भी बात किया और हमसे भी बात किया। उन्होंने कहा कि आप एक बार यहाँ बैठ जाइए। उन्होंने हमसे बातचीत की
तो हमने बोला चलो ठीक है। मेरे बड़े भैया ने जबरदस्ती उनको बोला था कि आप हमें नौकरी देंगे कि नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है, हम आपको नौकरी देंगे बस। तो भी हमने सोचा चलो ये नौकरी की बात कर रहे हैं, चलो नौकरी देगा, देखते हैं कि ये कब देता है कब नहीं, हम बाद में देख लेते हैं। अगर इसने नहीं दिया ना तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत हो गए हम इसके करके परेशान। बार बार इसने मेरे माँ बाप को इधर उधर भेज कर ऐसी हालत ही बना कर रखा हुआ है। खुद की हालत तो देखा नहीं, दूसरों की तकलीफ नहीं देखता या दूसरों की बात नहीं सुनता, तो फिर नौकरी के लिए किस लिए बैठा ये बंदा। इसको छटो निकालो मुंडे को, ये किसी काम का नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं वहां जाके कुछ नहीं बोली, क्योंकि अगर मैं वहां बोलती तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो सोचेंगे कि इस लड़की ने तो हमको मारा, ये है वो है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि अगर ये अच्छा इंसान है तो समझ लो कि ये नौकरी देने के लिए तैयार है। तो अगर ये नौकरी देना चाहता है तो दे दो, नहीं देने तो भी बुलाया किस लिए, बस यही बात है। इधर उधर ज्यादा फिर ना चुप है। फिर उसके बाद जबरदस्ती हम लोग घर आए, तो उसके बाद अचानक से उनका दोबारा फोन आया। उसने मेरी मम्मी को बोला कि आप उस बच्चे को लेकर आओ। उसने लेटर भी आई थी, हम लेटर के लिए बड़े खुश हो गए थे। हमने बोला चलो हमारी नौकरी आ गई, चलो हम लेटर के लिए चल पड़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग ना चल गए थे वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका सिर्फ लेटर आ गया है। तो उसके बाद ना हमने सोचा कि हमारा वो आ गया, लेटर वगैरह आ गया, तो आप लोग मतलब वहाँ पे आइए, जल्दी से आइए। उन्होंने जबरदस्ती मेरी मम्मी को फोन करके बोला कि उन्होंने आपको बुलाया, आप उधर आइए बस। तो हम लोग, मम्मी ने हमें कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आप चल पड़ो वहाँ पे। तो हम लोग तैयार होकर जल्दी से बड़बड़ गए। हमने सोचा पता नहीं कितनी खुशी हो रही है, चलो हमें हो सकता है कि लेटर आ गया तो हम चल पड़ते हैं, हमारी नौकरी आ जाएगी, चलो हम चलते हैं। और जब हम वहाँ गए ना तो सब कुछ उल्टा हो गया। उस आदमी ने हमको इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया, उसने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया, हमें भी बेवकूफ़ बना दिया। तो हमने सोचा पता नहीं इसमें ये बंदा सच बोल रहा है या उल्टा बोल रहा है या बहाना बना रहा है, जहाँ मेरे माँ बाप को घुमाने के लिए कर रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोगों ने दोबारा कहीं और गए, उन्होंने हमको उस वो वाली गली में भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब एप्लीकेशन लिखो। अरे मेरे माँ बाप ने तो 1000 बार उनके लिए हमारे बारे में एप्लीकेशन कई बार लिख के दे दी है, फिर भी उन्होंने नहीं दिया हमें नौकरी। फिर हम लोग बस चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर क्या पता अभी जो इस बार जो आई हुई है लेटर, उसका क्या मालूम। अभी वो अभी हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जब उन्होंने कहा था कि हम जब दोबारा तीसरी बार अपने घर आए, फिर उन्होंने बोला कि आप उस बच्चे को लेकर आओ बड़ी ऑफिस में। मैं, मम्मी और मेरा भाई, मेरे पापा, हम दोनों ना चारों यहाँ से चल गए थे। छोटा मेरा घर था। तो उस वक्त हम लोग उधर गए, तो उन्होंने बोला कि ज्योति कौन है। हमने कहा हम मैं ज्योति। बोलो। बोलते कि आओ अंदर। उस वक्त हाँ एक जरूर कहना चाहूँ, मैं और भैया हम लोग गए थे, तब उनकी बातचीत हो गई थी। तो मुझे अजीब लग रहा था देखने में कि ये आदमी कर क्या रहा है, ये नौकरी दे भी रहा है कि बेवकूफ़ बना रहा है या बहाना पीछे बना रहा है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग घर गए दोबारा। फिर मेरे को गुस्सा आ रहा था घर में। मैंने सोचा मैं तो अब पागल हो जाऊंगी, ये आदमी कर क्या रहा है। अगर ये नौकरी देना चाहता है तो दे दो भाई, अगर नहीं देनी तो फिर नखरा किस लिए कर रहे हो। कितनी बार सताया ਤੁਹਾਨੂੰ उस बंदे ने? 4 बार। 4 बार और 5 बार 6 बार 1000 बार इसने सताया। मैं तो अपना हत्या करने वाली थी। तो मैंने सोचा मैं हत्या नहीं करूंगी, पहले मुझे उसको टूटना है, फिर इसको सबक सिखाऊंगी मैं बुरी तरह से। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀਰਜ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨੀਰਜ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। भीड़ में तन्हाई में, प्यास की तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। थोड़ा इतना ही लाइन याद है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਜੋਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੋਂ ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਜ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਡੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀ ਬੇੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।